Hello students, today we are going to analyze the summary of the poem Ode to a Nightingale, which was composed by the famous romantic poet John Keats and was published in the Annals of the Fine Arts in 1819. We have already discussed about the poet John Keats in our previous video lecture. So let's go through the summary of the poem. The popular poem Ode to a Nightingale was composed by John Keats. It was written when Keats was at Wentworth Palace, Hampstead, with his friend Charles Brown. तो ये उन्होंने कब कंपोज की थी? जब वो वेंटवर्थ पैलेस हैम्स्टेड में अपने फ्रेंड चार्ल्स के साथ थे. He got inspiration to compose this poem from a bird, nightingale, which had built its nest near the house of the poet. One day, Keats went to the garden and sit there for some time. There he heard the melodious song of the nightingale. He felt an extreme joy to hear her sing. तो जब उन्होंने उस नाइटिंगेल की वॉइस सुनी, उसका सॉन्ग सुना, they got extreme joy from the voice of that bird. Then he composed the poem sitting under a plum tree, hearing the song of the nightingale. और उस सॉन्ग को सुनने के बाद इन्होंने एक सिटिंग में ही, एक दिन में ही वो पोएम कंप्लीट कर ली. Thus the poet expresses the feelings of joy while hearing the song of the nightingale. This poem was first published in Annals of the Fine Arts. It is a poem of 80 lines. It has 8 stanzas. So there are 80 lines. Each stanza contains 10 lines. The poem is rich in sensuous imagination. The diction of the poem is sublime and sweet. The poet is famous for his picturesqueness. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स यूज़ किए हैं, इमेजेस यूज़ किए हैं to express his feelings towards the bird. He is an expert in composing pictorial poetry. He is also famous for his use of Hellenism in his poetry. तो इस पोएम में और इनकी बहुत सारी पोएम्स में, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, तो उसमें हेलेनिज्म दिखता है. हेलेनिज्म इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रीक कल्चर. तो यहाँ पे ग्रीक कल्चर की फॉन्डनेस उनके अंदर दिखती है. He was fascinated towards Greek culture and Greek art. This is called Hellenism. The poem is an excellent example of the romantic poetry. The poem Ode to a Nightingale describes the beauty of the song of the nightingale. Nightingale's song represents a world of perfect beauty and extreme joy. According to Keats, the world of the nightingale is an ideal and perfect world because the beauty of that world will never fade away. उस वर्ल्ड की जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, because the bird will ever sing her song. He wants to reach there with the help of wine. अब ये उस दुनिया में, उस नाइटिंगेल की दुनिया में पहुंचना चाहते हैं with the help of wine. वाइन पीकर इनको ऐसा लगता है कि शायद ये उस दुनिया में पहुंच जाए, नाइटिंगेल की दुनिया में. After it, he wants to reach there through his poetic imagination as he is a poet. तो फिर बाद में वो वाइन पीने का जो आइडिया उसको डिक्लाइन करते हैं और सोचते हैं कि उस वर्ल्ड में कैसे पहुंचा जा सकता है थ्रू द पोइटिक इमेजिनेशन, बिकॉज ही इज़ अ पोइट. He wishes to drink the water of the river of forgetfulness to reach in the world of nightingale. तो ये फिर क्या सोचते हैं कि ये उस रिवर के पानी को पिएंगे, जिसको पीने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, इन द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल आफ्टर फॉरगेटिंग हिज एक्चुअल और रियल वर्ल्ड. ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी द हैप्पीनेस ऑफ द नाइटिंगेल. So let's see the stanza 1. In the first stanza, the poet hears the song of the nightingale. After hearing the song, he feels the pain in his heart, not because of any sorrow, but it is by the excess of joy. तो जब वो नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनते हैं तो उनके अंदर, उनके दिल में जो पेन है, that comes out not because of sorrow. और ये जो पेन है, it is not the pain of sorrow but the excess of joy. The poet is not jealous of the happiness of the nightingale, और वो नाइटिंगेल की खुशी को देखकर बिल्कुल भी जेलस नहीं है.
He also wants to reach in the world of Nightingale with the help of wine or opium, drug or water of the river of forgetfulness where the bird is singing with full throat. तो ये उस दुनिया में, उस नाइटिंगेल के वर्ल्ड में पहुंचना चाहते हैं, और पहुंचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, whether he can drink wine or can drink opium, drug और वाटर ऑफ द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, या फिर फॉरगेटफुलनेस की जो रिवर है उसका पानी पीकर ये पूरी दुनिया को भूलकर उस वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक अपॉन द स्टेंजा. My heart aches and drowsy numbness pains, my sense as though of a hammerlock I had drunk, or am tied some dull opiate to the drains. 1 minute passed and late words had sunk. It is not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beaching green and shadowing numberless. तो यहाँ पे ये क्या बोले, my heart aches, उनके जो हार्ट में जो पेन उठ रहा है, एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स, तो उनका जो हार्ट में जो पेन है वो कैसा है, ड्राउजी है, बहुत वो ड्राउजी हो चुके हैं. माई सेंस एज दो ऑफ अ हैमरलॉक, और उनके जो सेंसेस हैं उसको जगाने के लिए और उस वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए, नाइटिंगेल की वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए वो वाइन पीना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक अ हैमरलॉक और एम टाइड सम डल ओपिएट, या फिर ओपियम का कुछ डोज लेना चाहते हैं, सो दैट ही कैन रीच द प्लेस. इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ हैप्पी लॉट, और वो बिल्कुल भी उस हैप्पी लॉट से, उस नाइटिंगेल के से बिल्कुल भी जेलस नहीं है, बिकॉज बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि उसकी खुशी में ही वो खुश है. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेंजा ऑफ द पोएम. Now the second stanza. In the second stanza, the poet wants to drink wine that has been kept for a long time under the earth. अब ये किस तरह की वाइन पीने की डिज़ायर कर रहे हैं, that was kept under the earth for very long time, जो कई सालों से अर्थ के नीचे दबा हुआ है. The poet believes that wine will inspire the poet in the same way as the water of Hippocrene inspired the people who drank it. तो ये कहते हैं कि वो जो वाइन है उसको पीने से उन पोइट को उसी तरह की इंस्पिरेशन मिलेगी जैसे कि हिपोक्रेन क्या है, हिपोक्रेन इज़ अ फाउंटेन, एक झरना है जिसका पानी पीने से पोइट को इंस्पिरेशन मिलती है पोइट्री लिखने के लिए. तो ये वाइन पीने से, उस अर्थ में दबी हुई वाइन को पीने से उनको इसी तरह की इंस्पिरेशन मिलेगी जैसे पोइट जो है हिपोक्रेन से का वाटर पीने के बाद पोइट्री लिखने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं. आफ्टर इट द पोइट कंपेयर्स द वाइन कप विद द ब्लशेस ऑफ द गर्ल, और उसके बाद जो वाइन का कप है उसको पोइट किससे कंपेयर करते हैं, विद द blushes of the girl. In stanza third, the poet again wants to go away from his real world of pain and misery. So हर स्टेंजा में बस वो अपनी यही डिज़ायर दिखा रहे हैं कि अपने इस रियल वर्ल्ड से कहाँ जाना चाहते हैं, वो उस नाइटिंगेल के इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाना चाहते हैं. नाउ ही वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड पेन एंड मिजरी, क्योंकि वो जो रियल वर्ल्ड है वो कैसा है, पेन और मिजरी वाला वर्ल्ड है जिसे छोड़कर वो नाइटिंगेल के प्लेजरेबल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू फॉरगेट द रियल वर्ल्ड एंड इट्स पेन एंड वॉन्ट्स टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, और एक इमेजिनेटिव दुनिया में वो रहना चाहते हैं. इन स्टैंजा 4 द पोइट वॉन्ट्स टू रीच इन द वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल, फिर वही डिज़ायर दिखा रहे हैं दैट ही वॉन्ट्स टू रीच इन द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल, बट नाउ ही लीव्स द थॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन. लेकिन अब ये वाइन पी कर नहीं जाना चाहते, अब ये वाला आइडिया वाइन पीने का ये यहीं पे ड्रॉप करते हैं. इंस्टेड ऑफ इट ही वॉन्ट्स टू फ्लाई विद विंग्स ऑफ पोइट्री. ये अब कैसे जाना चाहते हैं, पोइटिक इमेजिनेशन के थ्रू अब ये उस वर्ल्ड में जाना चाहते हैं. मतलब अब ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं पोइट्री कंपोज करूं और उस दुनिया में अपनी पोइट्री के थ्रू पहुंचूं. द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल सीम्स टू द पोइट वेरी ब्यूटिफुल. द मून इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल सराउंडेड बाय द शाइनिंग स्टार्स. तो मून भी बहुत ब्यूटिफुल है एंड द सराउंडेड शाइनिंग स्टार्स आर वेरी ब्यूटिफुल. Here the stanza 5 the poet says that